So my first memories of SIS actually go back to very initial 80s. And I remember my father used to go for night checks. रात को I still remember एक हरे रंग की Fiat हुआ करती थी जिसके दरवाजे उल्टा खुलते थे. So जीप होता था एक. तो he would go for night checks, and I remember that as a child one of my most exciting parts was कि मैं भी उनके साथ रात को क्या करने जाते हैं, नाइट चेक क्या होता है. तो I would really be very interested to know exactly what happens, and I remember once or twice with him I have had the opportunity when I would be like 6, 7, 8. So I remember that time to go for night checks, and I remember that back then मेरे नानी का घर रांची में होता था. Sometimes during holidays we would drive from Patna to Ranchi or Ranchi to Patna, but it was never a straight drive. He would stop at the units on way to check guards and meet people and things like that. So I have very fond memories of those years and how I would see SIS. Also as a first generation entrepreneur, एक first generation entrepreneur के घर में basically जो भी business में हो रहा होता है वो घर पे भी कहीं ना कहीं same discussion sort of spills over on dinner tables, on casual chats, not with me, पर ऑफिस के लोग आए हुए हैं. They were always a part of family, so it was this uncle, that uncle, वो आए हुए हैं, कुछ बात हो रही है, हम लोग भी वहीं हैं, कुछ थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है. But I've seen it unfold. And I remember हमारा घर 94 में हाउस नंबर 94 पाटलिपुत्रा कॉलोनी में होता था. समटाइम्स वहाँ पे भी मीटिंग्स होती थी और वहाँ पे कई बार गार्ड्स का रिक्रूटमेंट या उनका पीटी परेड, ये सारी चीज़ें हमारे लॉन में होती थी. आई रिमेंबर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ दैट टाइम. मीटिंग UN सिंह हुआ करते थे जो ज़्यादातर गार्ड्स की ट्रेनिंग वगैरह कराते थे. पापा के साथ उनके एक बॉडीगार्ड होते थे, नेवल डे कैमरा. सो आई रिमेंबर हिम वेरी फॉन्डली, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम. एंड देन सो मेनी अदर पीपल. अरविंद बाबू वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट. उस समय आर लाल होते थे, बिरजू बाबू होते थे. दे वर ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एट SIS. हमारे CA साहब होते थे जिनको CA अंकल मैं कहता था, चीफ एडवाइजर लेट श्री KN प्रसाद जी. सो दे वर नॉट रियली ऑफिस पीपल, दे वर लाइक घर के बड़ों के जैसे. पापा भी उनको ट्रीट करते थे, फाउंडर चेयरमैन. मदर भी वैसे ही उनको ट्रीट करती थी घर के बड़ों के जैसे. तो हम भी वैसे ही ट्रीट करते थे. टू 2001-2 दैट पीरियड जब मैं UK में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा था, उस टाइम एंड एज में I remember everybody wanted to be an investment banker. So I was seeking a job in banking. Or around the same time, I think one of the biggest changes in the global security industry happened. 9/11 attacks, 2001. September 11 जो attacks US में हुए, World Trade Center और ऐसे institutions पे. What result was that suddenly I remember UK के newspapers में front page पे it was all about security, or how security is going to be top agenda for governments, security is going to be top agenda for all businesses. फिर reports आने लगे कि security is the next big thing in the world as an industry. GE is investing in security, United Technologies is investing in securities. So suddenly, I remember 2001-2 में security started to become really important, and it was also the time that I had finished my college and investment banking में job चाहिए थी. जो job चाह रहा था वो मिल नहीं रही थी. Things were not really going to plan, and then I came back. I still remember that 7 July 2002 was my joining date in SIS. My appointment letter is dated 7 July. My first title was Vice President directly. So I was VP बिजनेस डेवलपमेंट एंड कैश फ्लो. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल था क्योंकि आई थिंक आई वाज इंटरेस्टेड इन बिजनेस डेवलपमेंट साइड ऑफ थिंग्स. The company was in a cash crisis. If I go back to 2002, 3, 4,
पहले 3-4 साल आई थिंक, आई मीन SIS was in a little bit of trouble. I remember 2002 का, if my memory serves me right, करीबन 22-23 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का. But the company had run into a cash flow crisis and a pretty serious one. मतलब 2-3 महीना salary outstanding for most people. There were vendor outstandings. Company wasn't growing much. तो एक difficult period था SIS का. But looking back, what I find amazing is कि आज के ज़माने में अगर किसी कंपनी में 3 महीने के सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाए तो शायद एक आदमी भी वहाँ काम नहीं करेगा या काम करना नहीं चाहेगा या उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी. 2002, 3, 4, SIS was in cash crisis and salaries were delayed, vendor payments were delayed. But I still remember that the team was intact. Team was in high spirits. Somewhere there was a belief कि ये दौर भी निकल जाएगा, ये period निकल जाएगा. So in that period, I remember managing cash flow also and doing some business development, sales work, brand development, marketing work. So it was an interesting time. It's also the time in 2002 when Mr. Uday Singh had joined. Arvind Babu was there. We were transitioning from, some senior people were retiring, some newer people were coming. So काफी change का एक period था, difficult period भी था. But I think SIS को, और मैं personal career सोचूं तो मेरे personal career को बहुत shape करने वाला period था. असली कैरेक्टर जो है वो बिजनेस का भी और इंडिविजुअल्स का भी कठिन परिस्थिति में ही शेप होता है. अगर मैं फेजिंग करूं तो 2004-05 तक हम उस पीरियड से थोड़ा निकलना शुरू हो गया था. एंड इट वाज आल्सो अ टाइम व्हेन वी वर स्टार्टिंग टू बिल्ड सिस्टम्स. बिजनेस प्रोसेसेस को हम री इंजीनियर कर रहे थे. तो लार्जली इनिशिएटेड बाय मिस्टर उदय सिंह. उन्होंने पहले ISO स्टैंडर्ड्स के थ्रू पहले बार पूरे सिस्टम को समझाया कि जो हमारा बिजनेस है उसको हम प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे सेल्स करना, कैसे रिक्रूटमेंट करना, कैसे ट्रेनिंग करना, कैसे ऑपरेशन चलाना, कैसे बिलिंग करना, कैसे कलेक्शन करना. तो पूरे बिजनेस को स्टेप्स में डिवाइड करके फिर हर एक स्टेप में हमारे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, रिक्रूटमेंट में हम क्या गलतियाँ करते हैं, ट्रेनिंग में हमारी क्या कमियां हैं, ऑपरेशन चलाने में हमसे क्या चूक होती है, और फिर उसको ठीक करने के लिए हाउ डू वी फिक्स द बिजनेस प्रोसेस. सो BPR का ये काम जो है ये हुआ. ABP एनुअल बिजनेस प्लानिंग सिस्टम 3-4 में लागू हुआ. अरविंद बाबू ने ERP जो आज चलता है SIS में, जो अभी फेज आउट हो रहा है, आई थिंक अराउंड 5-6 जो हमारे कंप्यूटराइजेशन का जो पूरा सिस्टम था उसको चेंज करके एक एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म आया. So a lot of things on the back end. On the front end, I remember that this was also the period when 2004-05 के और 8-9 के बीच में 5 साल SIS did rapid geographical expansion. उस समय SIS was predominantly security in East India and North India. 10-12 ब्रांच होंगे, under 10,000 लोग थे. But ये 5 साल में 2004 और 8-9 के बीच में SIS was on a geographical expansion overdrive. हम लोगों ने अपने ब्रांच नेटवर्क को लगभग 100 ब्रांच 5 साल में पहुंचाया. हर एक साल 10-12, 15 ब्रांच, 20 ब्रांच एक साल में खोल के SIS really went to, मतलब पहली बार 2006-07 में हम वेस्ट इंडिया गए, बॉम्बे में ब्रांच खुला, अहमदाबाद गुजरात में ब्रांच खुला. साउथ इंडिया में भी SIS पहले से था, बेंगलोर में SIS काफ़ी समय से था, बट फिर अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में जाना, वो सब कुछ हुआ. नॉर्थ में भी कई अदर पार्ट्स में हम जहाँ नहीं थे वहाँ भी गए. तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन का एक दौर 2004 और 8 के बीच में था. इसी दौरान हम लोगों ने 7 फिंगर मॉडल डेवलप किया. आई स्टिल रिमेंबर दैट एक फ्लाइट हुआ करती थी, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ज़माना नहीं था, तो एक दिल्ली से फ्लाइट चलती थी जो पहले भोपाल जाती थी, फिर रायपुर जाती थी, फिर नागपुर जाती थी, फिर शायद इंदौर जाती थी, फिर वापस दिल्ली आती थी. तो हमको चूंकि ये शहर जाने थे, तो व्हाट वी वुड डू दैट वी वुड गेट ऑन टू दिस फ्लाइट और एक रात नागपुर पे रुके, अगले दिन वही फ्लाइट पकड़ी तो अगले शहर गए, फिर अगले दिन एक दिन काम करके फिर वो फ्लाइट पकड़ी, फिर आगे ऐसे करके करते थे. तो आई रिमेंबर दैट ये पूरा 7 फिंगर मॉडल उस फ्लाइट पे मैं, उदय सर एंड आई थिंक अरविंद बाबू भी थे, हम लोग बैठे हुए थे. एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये हम जब रिव्यू करने जाते हैं तो होता क्या है कि किसी ब्रांच में रिव्यू करने गए, उसका कलेक्शन बहुत खराब चल रहा है, तो पूरा डिस्कशन कलेक्शन पे ही हो गया, समय खत्म हो गया, हम वहाँ से निकल गए. किसी में ग्रोथ नहीं हो रही तो पूरा डिस्कशन सेल्स और उस पर हुआ और फिर बाकी चीज़ें टच नहीं हुई और हम निकल गए. तो हाउ डू वी बिल्ड अ कॉम्पोजिट रिव्यू सिस्टम जिसमें कि एक सेशन में सारी बातें उस ब्रांच की कवर होंगी. तो उससे 7 फिंगर मॉडल
आया कि हम एक्चुअली वरी करते हैं 3 चीज़ों के बारे में, रेवेन्यू, कॉस्ट और मार्जिन्स। ये 3 पैरामीटर्स के बारे में वरी करते हैं, पर ये 3 पैरामीटर्स आप फिक्स नहीं कर सकते हो जब तक आप पहले 4 पैरामीटर फिक्स नहीं करो। आपकी सेल्स ठीक हो, आप डिसबैंडमेंट पे कंट्रोल रखो, आप मैन पावर पे कंट्रोल रखो और आप कलेक्शन ठीक रखो। तो ये 4 फिंगर पे ध्यान रहेगा तो ये 3 फिंगर ठीक होंगे। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 7 फिंगर मॉडल एंड इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड ऑन अ फ्लाइट। आई स्टिल रिमेंबर एक एयर होस्टेस क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, उससे बार बार वो टिश्यू पेपर नैपकिन मांग के वी वर स्क्रिबलिंग एंड राइटिंग। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड आई थिंक उसी तरह once we were driving, I can't remember from where, कि ब्रांचेस का टारगेट कैसे सेट करना। पहले SIS के ब्रांचेस का टारगेट सेट होता था नंबर ऑफ गार्ड्स कितने वो बेचेंगे उस पे, फिर हुआ कि नहीं हम इसको रेवेन्यू पे सेट करेंगे, फिर हुआ कि कैसे रेवेन्यू पे डिसाइड करेंगे। पहले सेट होता था कि ये ब्रांच साल में 30% ग्रो करेगा, ये ब्रांच साल में 20% ग्रो करेगा, ये 50% ग्रो करेगा, पर वो परसेंटेज किसी को याद नहीं रहता था, वो लोग भूल जाते थे। तो वी सिटिंग इन अ कार, हम लोग ड्राइव कर रहे थे। आई थिंक अरविंद बाबू केम अप विद द आइडिया कि व्हाई डोंट वी डू इट बेसिस रूल ऑफ 78, कि ब्रांच को सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मुझे हर एक महीने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पर मंथ अपने बिलिंग को बढ़ाना है, नेट चेंज। और अगर वो 2 लाख उसको याद रहेगा, वो करता रहेगा, तो 12 महीना में ऑटोमेटिकली परसेंटेज ग्रोथ तो निकल जाएगा। बट वी विल बी एबल टू सिंप्लीफाई फॉर एवरी ब्रांच मैनेजर कि आपको कितना ग्रोथ करना है। तो उससे कहीं पे शब्द इजाद हुआ मैजिक नंबर। आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, पर हुआ कि ये नंबर अगर आप मैजिक नंबर है आपका, आप इतना लाख रुपए पर मंथ ग्रो करिए तो आपका साल का टारगेट परसेंटेज ग्रोथ का ऑटोमेटिकली बीट हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर इन दिस पीरियड हम लोग जो है ब्रांच रिव्यू करने के लिए 7 फिंगर मॉडल, ABP सारा एक्सेल पे बनता था। धीरे धीरे इसको PPT पे डालना, रात भर बैठ के मेरे साथ अरविंद बाबू के साथ कुछ लोग थे, मनीष और ऐसे लोग जो बैठ के रात भर बनाते थे रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस जो डिस्कस होते थे। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। पूरा बिजनेस रीसेट हुआ, ग्रोथ अच्छी आई। जो कंपनी 2002 में करीबन 22-23 करोड़ की थी, 2007-8 तक हम 150 करोड़ के आसपास के हो गए थे। तो कई गुना ग्रोथ इन 5 सालों में हुआ। जो ब्रांच नेटवर्क बहुत फैला, सिस्टम्स बहुत सुधरे, बहुत मजा आ रहा था उस समय काम करने का एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। मैं अभी भी मानता हूँ कि मुझे जीवन में पहले जो 5-7 साल में सीखने को मिला, आई थिंक इट वॉज मार्वलस। डिजाइन नहीं था, डेस्टिनी था, बट आई थिंक इट वॉज मार्वलस एंड फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, आई गॉट टू वर्क विद अ रॉक सॉलिड टीम। चेयरमैन ने एक बहुत सॉलिड कल्चर एस्टेब्लिश किया था कंपनी का, बहुत अच्छे लोग थे, फैमिली कल्चर था। And I got the benefit of working with mentors and professionals like not just Mr. Uday Singh and Arvind Babu, but also with DC Nath, with RN Das, JS Antal. कई सारे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने का चांस मिला। And I think from chairman side, I think what I found really admirable and I don't know कि कैसे हुआ, पर I remember that chairman had great confidence. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उस समय की, अपने हिसाब से बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत डिसीजंस लिए। बट आई स्टिल रिमेंबर एज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ द कंपनी, ही वॉज नेवर रिस्ट्रिक्टिव। कभी नहीं बोला कि ये नहीं कर सकते तुम और ये अलाउड नहीं है और ये मेरे से पूछे बिना कैसे कर दिया। अगर उनको कोई पसंद भी नहीं आता था तो बहुत शांति से इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। ही वॉज वेरी जेनरस। आई एम नॉट श्योर कि मेरा अगर बनाया हुआ बिजनेस रहता तो मैं ऐसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को अलाउ करता कि तुम अपने हिसाब से इसको करो, या एक प्रोफेशनल CEO इन द नेम ऑफ मिस्टर उदय सिंह, तो अपने हिसाब से जो चाहो वो करो। आई थिंक ही वाज एक्सट्रीमली पेशेंट, वेरी हाई कन्विक्शन अपने लोगों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। लाइक आई सेड, वेरी जेनरस अबाउट अलाउइंग द बिजनेस टू फ्लरिश, ग्रो, other people to take control, other people to take decisions. Absolutely marvelous. Chairman in 2003-4 to 2007-8. He was a part of the business, as in वो सब कुछ जान रहे थे कि क्या हो रहा है etc. But he was not on the front taking all the decisions. He was comfortable कि एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई है, उसमें 3-4 लोग हैं और उनको उन्होंने पूरी तरह ट्रस्ट किया। एक कलेक्टिव लीडरशिप कल्चर डेवलप किया कि मैं हूँ, आप लोग करो। वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज एज अ फाउंडर ओनर क्या होता है, यू ट्राई एंड कंट्रोल द बिजनेस कंप्लीटली कि भाई सब मैं ही डिसाइड करूंगा, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए।
So I think he showed great leadership, कि बिजनेस के प्रायोरिटीज़ को और नेक्स्ट जेन लीडर्स को आगे रखते हुए बिजनेस को आगे डेवलप करने की पूरी आज़ादी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़े मन से उन्होंने दी। और इसी वजह से एसआईएस में सिर्फ लीडरशिप नहीं, हर एक स्तर के लोगों का बहुत ग्रोथ हुआ है। बिकॉज कोई ब्रांच मैनेजर होगा या कोई अकाउंट्स में होगा या कोई ट्रेनिंग में होगा, चेयरमैन साल भर ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर एंड चेकिंग कि तुम कर क्या रहे हो, बट ओनरशिप बहुत हाई होती थी। अगर आप 12 महीने बाद भी किसी से मिल रहे हो तो ही विल रिमेंबर कि क्या लास्ट टाइम बात हुई थी, ही विल आस्क यू कि आपने क्या किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है उनका इंस्पायर करने का, लोगों में ओनरशिप पैदा करने का, कि वो जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। और सही मायने में उनको ऐसा भी नहीं लगे कि कोई उनको बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है कि ये तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा। वो उनका काम करने का तरीका नहीं है, बहुत छूट और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल हैव ग्रोन इन एसआईएस। आफ्टर दिस ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन केम अ फेज ऑफ सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एसआईएस थोड़ी सी सक्सेसफुल हो गई थी, फास्ट ग्रो कर रही थी, अपने बाकी इंडियन जो सिक्योरिटी कंपनीज थे उनसे हम थोड़ा आगे निकल रहे थे, कंपनी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और मूड था। सो आई रिमेंबर दैट आई हैड दिस हैबिट दैट इन माय ऑफ टाइम आई वुड टेंड टू रीड अ लॉट अबाउट सिक्योरिटी कंपनीज ग्लोबली, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आई डिस्कवर्ड दिस इंफॉर्मेशन दैट जो यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है वो चब सिक्योरिटी कंपनी को पार्ट करके ग्लोबली सेल कर रहे हैं। तो यूएस में, बट आई एम श्योर यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य पार्ट्स में they were selling the Chubb security business. So I still remember walking up to chairman and then later Uday sir ki why don't we buy this company overseas? It was sort of a radical idea because ना उस समय SIS के पास कोई financial capability थी, ना ऐसा कोई management capability थी एक global business run करने के लिए, but dreams बड़े थे, big ambitions, big dreams, aspirations, whatever you call it. And I remember that one thing led to the other and हमने 2008 में ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंपनी अक्वायर कर ली। It was called Chubb then, Chubb Security। करीबन 280 odd million dollars का बिजनेस था और SIS से एग्जैक्टली 7-8 गुना बड़ी कंपनी थी। So it was destiny or it was very radical idea or it was sheer leadership shown by the team, or I don't know, it was a mix of everything, but we acquired that company। काफ़ी leverage पे acquire किया था, काफ़ी debt था, and I still remember that my memories of that period, 2-3 big memories। Number one, we didn't have the money to acquire। उस समय global financial crisis हो गया था 2008-9 में, और ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग मिल नहीं रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, TCA रंगनाथन साहब उस समय जनरल मैनेजर थे इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप के, और मैं ऑस्ट्रेलिया में था। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया था कंपनी एक्वायर करने के लिए, एंड वी डिडंट हैव फंडिंग फॉर इट। एंड आई रिमेंबर दैट चेयरमैन वाज सिटिंग इन बॉम्बे, स्टेट बैंक ऑफिसर्स, and they called Mr. Uday Singh, मैं ऑस्ट्रेलिया में थे। We had a short discussion on the phone and then they sanctioned $40 million or something to pay money to acquire that company. Later, a friend of mine, Randhir Kochar, उस समय वो private equity DE Shaw के representative थे हमारे बोर्ड पे। तो रणधीर कोचर ने मुझे बताया that he was amazed। वो साथ में गए थे with chairman to Bombay to meet State Bank। So he told me much later that I'm amazed that बैंक ने, जो बैंक के मैनेजर्स थे, उन्होंने एकदम क्लियरली पूछा कि सिन्हा साहब आप कर क्या रहे हो, आपने बिजनेस ने मेहनत से बनाई है और आपसे 10 गुना बड़ी कंपनी खरीदने का प्रयास आप लोग कर रहे हो, इसमें तो आपको अपना घर और ये सारा कुछ कोलैटरल में देना पड़ेगा, बहुत रिस्क नहीं ले रहे आप। और आपका उदय सिंह है पर ऋतुराज तो अभी बहुत यंग है, आई वाज ओनली 27, so are you sure you should take that risk? And Randhir told me that chairman said, नहीं सोच समझ के ही कर रहे होंगे, अच्छा है आप तो करेंगे। You know, it's amazing how you can bet everything in a
मतलब उसके लिए रियली जो उसको बोलते हैं ना कलेजा चाहिए, रिस्क एपेटाइट चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए अपनी टीम पे. तो आई थिंक दैट इज वन मेमोरी आई हैव. सेकंड मेमोरी आई हैव इज with Uday sir going to meet all the Australians. They were all, the Australian team was new to us, we were new to them. They were not sure कि ये how they will manage, what value they will add, how this will run, because obviously Chubb was a big brand. SIS was not known. We were an Indian company buying into Australia. So I think at that point in time, the courage and leadership that Mr. Uday Singh showed, I was there, I was a part of the whole thing, but I think जो leadership, courage, क्लैरिटी ऑफ थॉट, बहुत काबिलियत से उन्होंने पूरे अक्वायर्ड एंटिटी को नेविगेट किया, उसको बेड डाउन किया, इंडियन ओनरशिप की क्लैरिटी इस्टेब्लिश वहाँ की. सो आई थिंक दैट वाज अ मार्वेलस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी to see all of that, you know, to recruit a new team, to put in place the management systems, etc., etc. That was a very fond memory. And then the third thing I remember is, you know, we still had a lot of debt. ऑस्ट्रेलिया में बैंक का भी बहुत डेट था और वेंडर फाइनेंस भी बहुत था. सो रीपेइंग दैट डेट, आई स्टिल रिमेंबर दैट वी वर ट्राइंग टू फिक्स द बिजनेस, 100-day प्लान, 6-month प्लान, 12-month प्लान, यू नो, एकदम हैंड्स ऑन तरीके से बिजनेस फिक्स करना. एंड आई थिंक अराउंड दैट टाइम वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू ऑल्सो, यू नो, देवेश जॉइन द टीम. देवेश देसाई, ही हैड अ ट्रिमेंडस वैल्यू टू द टर्न अराउंड, also to renegotiate the settlements with the banks. Mike McKinnon, fabulous leader, couldn't have had a better leader of MSS Australia in that time. George Chin, very instrumental to the deal. He also played a very, very vital role in, you know, setting up the whole thing. So I think we were very fortunate that a great set of people came together. And, you know, suddenly SIS, from being a 100-200 crore company in India, became 1,000 crore plus entity. A multinational, or at least a two-nation operation, if not a multinational. And then उस diversification के बाद we never stopped. I still remember we just did that deal and then I was on to saying that, you know, we must diversify. You know, security के जो adjacent businesses हैं, you know, I remember my talks with Mr. Uday Singh that facility management में हमको enter करना चाहिए. हमने cash management में उसी समय Mr. SJS दुग्गल और उनके साथ cash logistics में हाथ लगाया था. So we were trying to diversify to other segments, cash में, FM में. I remember that during that period there was a lot of debate कि are we spreading ourselves too thin? बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, एक साथ करना चाह रहे हैं. Do we have the financial resources ये सब करने के लिए, या management talent या bandwidth है क्या ये सब करने के लिए? Aspirational होना SIS का एक DNA है. मतलब अपना चादर के हिसाब से पैर नहीं फैलाना, पैर थोड़ा चादर के बाहर भी निकले, फिर चादर को बड़ा करना. So that approach करके हमने सर्विस मास्टर के साथ फैसिलिटी मैनेजमेंट लॉन्च किया. सर्विस मास्टर यूएस की बहुत बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्ल्ड लीडर, उसके साथ फिर हमने पेस्ट कंट्रोल में टर्मिनिक्स के साथ जेवी किया, फिर हमने प्रोसिगोर के साथ कैश लॉजिस्टिक्स के लिए जेवी किया. सो दिस वाज अ पीरियड बिटवीन 2008 एंड 2013-14, यू नो, ऑल दिस एक्सपेंशन इनटू टेक SIS एंड देन 2015-16 में वी प्रोटेक्ट. सो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी हो या कैश लॉजिस्टिक्स हो या फैसिलिटी मैनेजमेंट हो या पेस्ट कंट्रोल हो, ये सारे जो ब्रांड्स बने हैं, ये सब के सब ब्रांड्स 2008 और 2015-16 के बीच में, ये 7-8 साल के बीच में ये ब्रांड्स बने. Then again, I think a very interesting period was somewhere between 2014 onwards. I think SIS started to really push the M&A acquisition के मॉडल से ग्रोथ. तो ऑस्ट्रेलिया तो किया था 2008-9 में, पर उसके बाद 5-6 साल कुछ नहीं किया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का फिक्स करना, उसका डेट रिटायर करना, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि और कुछ करें. बट फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने मार्केट पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए 2014 में, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, हम लोगों ने SDB सिस्को कैश लॉजिस्टिक्स एक्वायर किया. फिर उसके बाद DTSS 2016 या 17 में एक्वायर हुआ. फिर बीच में SSMS करके कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, दैट गॉट एक्वायर्ड. देन, you know, we acquired SLV, Unique, SXP in Australia, P4G in New Zealand, Henderson in Singapore, SDS. So I think there's been a series of acquisition-led growth 2014 के बाद से. So I think, you know, so SIS journey is, different parts of it is very interesting for different reasons.
आई थिंक दिस गोज बैक 2004 मेरे ख्याल 3 या 4. सो वी हैड जस्ट स्टार्टेड फिक्सिंग SIS और मेरा यूनिवर्सिटी का डिसिटेशन प्रोजेक्ट था अबाउट कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया एंड व्हाट SIS कुड डू इन कैश लॉजिस्टिक्स विद अ ग्लोबल पार्टनर. इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2004 में वी वर ट्राइंग टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर विद कंपनी कॉल्ड सिक्योरिको एंड वो काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, आगे तक गई, अग्रीमेंट तक बन गए और अचानक से वो डील क्लोज हो गई. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया करने के. आई वॉज यंग एंड आई वॉज वेरी होपफुल फॉर दैट डील और मेरा कॉलेज के समय से एक डिसिटेशन प्रोजेक्ट वगैरह भी था. सो आई टुक वेरी बैडली टू इट. मुझे याद है मैं 1-2 दिन अपने कमरे में बंद हो गया था. आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट वॉट हैड हैपेंड. देन वी केम अराउंड, देन आई फाउंड अ न्यू पार्टनर कंपनी कॉल्ड सिक्योरिटास. तो उदय सिंह और मैं सिक्योरिटास से मिलने के लिए लंदन गए. उस समय सिक्योरिटास वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी थी. इट वाज लेड बाय मिस्टर टॉमस बर्गलैंड एज CEO, हॉकन विनबर्ग एज CFO. सो वी वेंट टू लंदन टू मीट देम. सो वो कुछ 10-12 बिलियन US$ की कंपनी थी और SIS वाज लाइक 100 crores और समथिंग और लेस देन दैट. तो हम गए उनके पास, जी हमें आपके साथ पार्टनरशिप करनी है. तो आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर उदय सिंह एंड मी वर सिटिंग टुगेदर एंड ऑन द अदर साइड टॉमस बर्गलैंड वाज सिटिंग अलोन. He was the CEO of the world's largest company. So he's saying, you want to do partnership, but what kind of partnership? You want to sell? You want to buy? What is partnership? That was a very interesting meeting. And then we came back with the idea कि हम Securitas को इंडिया में लाके और Securitas के साथ कैश लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ऐसे करके we will build Securitas portfolio in India. That discussion happened and then थोड़ी आगे भी बात हुई, 1-2 और मीटिंग्स हुई, वो इंडिया भी आए. आई रिमेंबर दैट जब डील साइनिंग की बात आई तो आई थिंक इट वाज 2005 अगस्त और समथिंग. हम लोग गए थे स्टॉकहोम एंड द लास्ट ऑफर दे हैड पुट ऑन द टेबल वाज कि वो शुरू में SIS में मेजॉरिटी एक्वायर करेंगे सिक्योरिटास और फिर 5-7 साल में या 10 साल में दे विल बाय 100% ऑफ SIS. उदय सिंह, रणधीर कोचर, चेयरमैन, मी एंड उर्बा तमंग, 5 of us went to Stockholm. एंड EY से रणधीर कोचर जी थे. वो ऑब्वियसली ही वाज कंसल्टिंग टू द डील, सो ही वाज ट्राइंग टू हेल्प अस डिसाइड. मिस्टर उदय सिंह भी थे एंड यू नो वी वर ऑल वेरी कीन टू फाइनलाइज द डील. एंड आई रिमेंबर दैट डील टर्म्स फाइनल होने के बाद वी वेंट ऑन अ लंच ऑन अ बोट एंड दे वेरी काइंड टू अस. हमको पूरा स्टॉकहोम घुमा रहे थे बोट से. लंच वंच वहाँ पे हुआ, वापस आए. And I still remember that after that I went to change and I went to chairman's room after changing. Urba Tamang was doing his blood test. वो अपना sugar test करते हैं regularly. तो his sugar was some 480 or 500, right? And he didn't say a thing about being concerned कि ये company हम almost sell करने के लिए यहाँ पे आए हैं. The discussion is around that. But I remember that very clearly that was my first thing that obviously he's not happy but he's not saying it because शायद मैं करना चाह रहा हूँ तो he doesn't want to stop me. And he came back with the offer from them. और मैंने फिर decide किया that ये जो deal मेरा ही initiate किया हुआ idea था. But then I decided कि यार मैं I'm not going to sell. मतलब 51 पहले और फिर 5-10 साल में sell the whole thing. So I remember everybody trying to not just the advisors but also people within the company trying to tell me कि ऐसा offer कभी मिलता नहीं है. They were offering us some 16-17 times EBITDA multiple and it was a very attractive commercial transaction. And everyone's trying to tell me कि you lost your head. कि तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा. जब निकल जाएगा तुमको समझ में आएगा कि क्या मिस किया. And something inside told me कि यार one was my father's thing and then also I said I'm not going to do it and I wasn't very convinced. So then what happened is that in March of 2006, a few months later, Thomas Berglund resigned as CEO from Securitas and उनके जगह पे एक Alf करके दूसरा अच्छा प्रोफेशनल became CEO of Securitas. So he came to India. मार्च में उसने ज्वाइन किया और वो पहले हफ्ते he was on a visit to India for this transaction. And I remember that he came to our office and we held a meeting and his thing was that I don't agree to this deal that Thomas and Hakan has offered you. We cannot give you 10 years to sell the remaining 49%.
It has to be 3 years. We'll buy 50-60% now, and in 3 years you have to sell everything. So that sort of gave me a trigger, and I just got up. I still remember I just got up and I said, "Thank you, Alf, but this is not happening, right?" And that was the end of that. अगर वो नहीं होता तो शायद SIS नहीं होता. And what was the fallout of that was even more interesting. So ये मार्च की बात है, and then we were speaking to Thomas and Hakan, who had उस समय तक वो छोड़ चुके थे Securitas. तो उनसे बात की एंड टॉमस सेड कि यार मैं रिटायर हो गया हूँ, मैंने छोड़ दिया सिक्योरिटास, बट आई लाइक SIS एंड आई बिलीव इन योर स्टोरी, तो मैं अपना पर्सनल पैसा आप पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. एंड देन वी वेंट टू लंडन अगेन एंड वी साइंड अग्रीमेंट्स फॉर टॉमस एंड हाकन टू अक्वायर 5% of SIS. 5% of SIS in personal capacity. They put their own money. And that was the first non-promoter investment in SIS. The ex-CEO and ex-CFO of the world's largest company put their personal money in SIS to say कि आप बनाओ, I believe your story, हम आपके साथ हैं, हम आपको बैक करेंगे, just do what you're doing. So that was great validation. More than the money, it was great validation कि we are on the right track और कुछ हो रहा है. उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर दैट मैं बहुत सारे प्राइवेट एक्विटी कंपनीज के पास जाता था उस समय. तो आई वाज ट्राइंग टू रेज मनी फॉर आवर ग्रोथ प्लान्स. तो मैंने जितने प्राइवेट एक्विटी कंपनी के दरवाज़ों पे मैं गया हूँ बॉम्बे में और बाहर, वुड बी अ रिकॉर्ड. आई वुड गो एवरी अदर वीक. कभी मीटिंग होती थी, कभी मीटिंग दरवाजे पे कैंसिल हो जाती थी, कभी मीटिंग 25 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पैकअप हो जाती थी, चाय आने से पहले मीटिंग खत्म टाइप्स. नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन SIS एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड देन हमको फंडिंग क्राइसिस हो रहा था क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और उस हिसाब से फंड्स नहीं थे प्राइवेट एक्विटी के लिए. वी वर टू स्मॉल अ कंपनी एंड द सेक्टर वाज अननोन. टॉमस बर्गलैंड ने अपना पैसा डाल दिया था. एंड देन आई थिंक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. जो रणधीर कोचर सिक्योरिटास की हमारी डील करवा रहे थे EY के पार्टनर के रूप से, he left EY and he went and joined D. Shaw, which is world's one of the largest hedge funds. So I still remember one day I was sitting in my office and I got a call from Randhir. So Randhir is saying, buddy, I'm coming towards Nehru Place. तू क्या कर रहा है? I'm like, I'm in office. So he said कि एक सैंडविच मंगवा लेगा. I'm just coming that side. Lunch time हो रहा है, so I'll catch up with you also. I said, आजा. So I called some lunch for him. So Randhir Kochar comes to my room, we sat down. I was like, क्या कर रहा है? He's like, I have left EY. So what are you doing now? He's like, I'm with D. Shaw, such and such. So many $1 trillion, US, New York based hedge fund, etc. etc. Good for you, buddy. So sandwich खाते खाते Randhir bent down and took out a sheet from his bag. And he said, Ruturaj, ये तेरे लिए term sheet है. I want D. Shaw to invest in you. ये terms है, ये हमारा offer है. So Randhir came with an offer. फर्स्ट डिस्कशन डी शॉ से कुछ नहीं हुई थी, स्ट्रेट अवे टर्म शीट आया था बिकॉज ऑफ रणधीर. एंड देन इट वाज अमेजिंग. वो $400 मिलियन डी शॉ ने इन्वेस्ट किया उसी महीने इन DLF और $4 मिलियन इन्वेस्ट किया SIS में. सो 400 और 400, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट या दैट्स हाउ SIS गॉट इट्स फर्स्ट प्राइवेट एक्विटी. सो दैट गिव अस द ग्रोथ कैपिटल टू सपोर्ट आवर ग्रोथ. या 2010-11 wasn't particularly a very good time for the family. Chairman had some serious health issues and we were all very occupied in that. And फिर 2012 में उनका बड़ा ऑपरेशन भी हुआ. So ये पूरा पीरियड 2-3 साल का थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था और इसी पीरियड के दौरान थोड़ा सा कंपनी की ग्रोथ भी हल्की स्लोअर साइड पे होने लगी. एंड we were some issues were building. Around the same time, we were also having a little bit of growth capital crunch because every time आप debt के basis पे grow नहीं कर सकते, आपको equity भी चाहिए हो. दूसरा एक pressure बन रहा था कि D. Shaw जो हमारे साथ 2007-8 में जिसने इन्वेस्ट किया था उसके भी 4-5 साल हो रहे थे इन्वेस्टमेंट के, तो उनको भी एक एग्जिट देना था, उनकी भी फंड्स रिटर्न करनी थी. सो अराउंड द सेम टाइम आई मेट Ajay Relan of CX Partners, and after a few rounds of interesting conversations, SIS raised its second round of private equity, or that gave us the growth capital to then push SIS to the next league
And then in 2015-16 we started to, when we were making a vision 2020, तो हम लोगों ने एक एस्पिरेशनल गोल रखा कि हम देश की पहली लिस्टेड सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी बनना चाहते हैं। तो कई लोगों ने बोला कि इस सेक्टर का डिमांड उतना बनेगा नहीं बनेगा, पब्लिक मार्केट्स पे कंपनी अभी थोड़ी छोटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी थोड़ा कम है, वेट कर लो, फला फला, जितने लोग उतने आइडियाज। बट फिर हम लोगों ने फाइनली 2016 में IPO प्रोसेस किक ऑफ किया और 2017 अगस्त में SIS बिकेम द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि हमारे सेक्टर से आती थी। और उसके बाद तो एक तरह का रश ही हो गया और वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने अपने लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी गेटवेज खोले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया का एक्विजिशन किया, ऑस्ट्रेलिया जाके एक्विजिशन किया, सो इट वाज अनथिंकेबल कि कोई इंडियन कंपनी ऑस्ट्रेलिया जाके क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन करेगी। और उसके बाद कई सारे इंडियन सिक्योरिटी कंपनीज, FM कंपनीज ने इंडिया के बाहर अपना ऑपरेशन फैलाया। प्राइवेट इक्विटी भी वैसा ही कुछ था। डी शॉ ने SIS में इन्वेस्ट किया। तब तक उतना ज्यादा बिलीफ सिस्टम नहीं था कि प्राइवेट इक्विटी को ये मार्केट भी इंटरेस्टिंग लग सकता है, इसमें भी, इस सेक्टर में भी प्राइवेट इक्विटी आ सकती है। तो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बाद 10 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हुए, विच आई थिंक वाज ग्रेट न्यूज़। उसी तरह IPO हमने 2017 में किया। उसके बाद भी करीबन 7-8 IPO हमारे सेक्टर के पिछले 6-7 साल में हुए हैं। तो आई थिंक SIS आवर डेफिनेशन ऑफ मार्केट लीडर, मुझे लगता है कि मार्केट लीडर वही हो सकता है जो थॉट लीडर हो, जो सोच में सबसे आगे हो, जो किसी आइडिया को कंसीव करने में, उस आइडिया को जमीन पे उतारने में सबसे आगे होगा, वही मार्केट लीडर बनने का अधिकारी है। थॉट लीडर होगा तो मार्केट लीडर होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। ऑफन टाइम्स मार्केट लीडर कंपनी थॉट में लीडरशिप नहीं डेमोन्स्ट्रेट करता, और जो थिंकिंग में लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करता है वो पक्का अपने सेक्टर का मार्केट लीडर जरूर बनता है। SIS की जर्नी में कई सारे ऐसे फेजेस आए हैं जो कि SIS ने देश के लिए काफी एक फंडामेंटल भूमिका निभाई है। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ दैट काइंड वाज डीमोनेटाइजेशन। हम अपने IPO के प्रोसेस में लगे हुए थे एंड आई रिमेंबर मैं, उदय सिंह और बाकी देवेश, वामसी, अदर टीम मेंबर्स, वी हैड जस्ट फ्लोन बैक फ्रॉम US आफ्टर रोड शोज। बॉम्बे लैंड किए थे, बॉम्बे में मीटिंग्स लाइंड अप थी। मेरा एक डिनर अपॉइंटमेंट था। आई स्टिल रिमेंबर मैं TV ऑन करके शावर के लिए गया हुआ था टू गेट रेडी फॉर डिनर। आई केम आउट और एज आई वाज चेंजिंग, आई स्टिल रिमेंबर वेरी विविडली कि वो टीवी पे प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस 8 बजे चालू हुआ और मैंने उसको फिर ऑन किया कि 8 बजे रात को प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, एंड ही वाज गिविंग दैट स्पीच अबाउट कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में वो बता रहे थे। एंड आई रिमेंबर आई वाज गेटिंग रेडी एंड माय जॉ फेल, ये क्या हो रहा है। बट उस समय भी मुझे स्ट्राइक नहीं किया कि इसका हम पे क्या इम्पैक्ट होगा या हमारी क्या रोल होगी। तो वो सुना और फिर मैं डिनर जिसके साथ था उसके साथ गया। हम बैठ के अच्छे से डिनर विनर खा रहे थे और मेरी फोन घंटी पे घंटी आई रिमेंबर दैट इट वाज गेटिंग सो अनोइंग दैट, क्योंकि दोस्त था मेरा, आई रिक्वेस्टेड हिम कि बॉस मैं थोड़ा अर्ली क्लोज करके पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई रिमेंबर आई केम बैक टू माई रूम और मैं अपना फोन साइलेंट करके उल्टा कर दिया था। मैं रूम में आया तो देखा मतलब मिस कॉल्स का कतार लगा हुआ है। आई स्टार्टेड कॉलिंग बैक, आई वाज कॉलिंग पीपल बैक, सम वर फ्रॉम SIS की क्या इसका हो रहा है, some people were from cash logistics industry, and then that night only I got this call from a senior government official saying कि आप कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। जी सर मैं हूँ कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का चेयरमैन, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बॉम्बे कब आ सकते हो। लाइक मैं बॉम्बे में ही हूँ। ओके कल सुबह इतने बजे यहाँ। एंड देन इन अ मैटर ऑफ 24 आवर्स द वर्ल्ड चेंज्ड, बिकॉज देश में कैश 2 तरीके से मिलता था, एक बैंक ब्रांच में, दूसरा ATM पे, और दोनों जगह कैश पहुंचाने का काम कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री करती है, जो RBI या करेंसी चेस्ट से पैसा उठा के उसको बैंक ब्रांचेस तक पहुंचाती है और वो पैसा ATM में जाके लोड करती है। एंड सडनली एवरीबडी फ्रॉम RBI टू इंडियन बैंक एसोसिएशन टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एवरीबडी वांटेड टू नो कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए। एंड इन नो टाइम आई वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ नोट कि हम देश भर के जो पुराने नोट हैं उनको वापस इकट्ठा करने में क्या रोल निभा सकते हैं, और जो नए नोट आए हैं उन नए नोट को ATM में डालने में ताकि लोगों को पैसा मिल सके उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो नोट यहाँ दिल्ली में
प्रेजेंट हुआ यहाँ पे दिल्ली में, जो उस समय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास तक गया। इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज आरबीआई ने एक एटीएम की टास्क फोर्स बनाई। हम लोगों ने बॉम्बे में एक कमांड सेंटर सेटअप किया जिसमें कि सारे एटीएम बनाने वाले, सारे एटीएम मैनेज करने वाले कंपनी और सारे कैश लॉजिस्टिक्स करने वाले कंपनी, सबको एक जगह बैठाया गया। और फिर अगले 30-40 दिन 50 दिन हमने मिलकर देश के कोने कोने से पुराने नोट कलेक्ट करके आरबीआई में पहुंचाना, नए नोट आरबीआई से बैंक ब्रांचेस तक पहुंचाना, एटीएम करेंसी चेस्ट से एटीएम तक पैसा पहुंचाना, और एटीएम के अंदर जो कसेट लगती है, जो डिस्पेंसर लगता है, उसमें जो पुराना नोट था उसकी साइज अलग थी, नए नोट की साइज अलग थी, तो उसका पूरा एटीएम मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ा। तो पूरी एक योजना बनी कि हजारों एटीएम पूरे देश में पर डे चेंज ओवर होंगे, तभी जाके नए नोट पहुंचेंगे। और लाइनें टीवी पे 24 घंटे एटीएम में क्या हो रहा है, बैंक ब्रांच में कितनी लाइन लग रही है, कितने लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। एंड एसआईएस देश में सिर्फ 10,000 कैशवैन है, एसआईएस उसमें से करीबन 2,500-3 हजार कैशवैन तो एसआईएस के हैं। तो 1/3 जो देश की कैपेसिटी थी कैश लाने ले जाने पहुंचाने की, वो कैपेसिटी एसआईएस प्रोसेगोर हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी की थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक तरफ ये पूरा इंडस्ट्री गवर्नमेंट आरबीआई वाला चल रहा था, और दूसरी तरफ आई न्यू कि अगर एज द इंडस्ट्री चेयरपर्सन अगर मुझे इस पे लीड लेना है तो सबसे जरूरी है कि जो इंडस्ट्री को तो साथ लेंगे ही, पर हमारे अपनी जो टीम है दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आई स्टिल रिमेंबर कि अपने लोगों को मैंने एड्रेस किया यहीं दिल्ली में करेंसी चेस्ट में, और मेरे मन में चिंता थी क्योंकि उस समय सारे लोग परेशान थे, सबके घर में परेशानी हो रही है। किसी के पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, घर में कैश है, वो कैश की बदली करनी है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने सबको एड्रेस किया, और वर्कर लेवल ड्राइवर्स और जो गनमैन कैश वैन में जाते हैं, कस्टोडियन जाते हैं, और मैंने बोला कि देखो यार, अभी 2 चीज कर सकते हैं, या तो अपने घर की चिंता कर सकते हैं, या घर की चिंता के साथ साथ अपने देश की भी चिंता कर सकते हैं। क्योंकि पूरे देश में 10,000 कैश वैन है, जिसमें से 1/3 हमारे हैं, और पूरे देश में करीबन 30,000 लोग हैं जो ये एटीएम का काम करते हैं, उसमें से 1/3 हमारे हैं। तो क्या करना है आप बताओ। एंड आई रिमेंबर दैट साधारण से गार्ड, ड्राइवर, कैश कस्टोडियन, जूनियर लेवल मैनेजर्स, क्या रिस्पॉन्स था उनका। सर आप चिंता मत करो, आप बताओ करना क्या है। फिर किसी ने बोला कि सर आने जाने में समय लगेगा, हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, और ऊपर ही एक भोजन व्यवस्था हो जाए, लंगर लगवा दो और गद्दे गुद्दे आ जाए सर, तो हम यहाँ यहीं सो लेंगे सर, यहीं पे चेंज चूंज करके काम पे लगेंगे, घर आने जाने का समय बचेगा। एंड आई वॉज ब्लोन। मैं उस एड्रेस में गया था सोच के कि हमारी इंडस्ट्री एसआईएस तो नहीं, पर अन्य कंपनी यूनियनाइज्ड भी है, तो मुझे लगा कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, इसमें क्या एक्स्ट्रा डिमांड्स होंगे कि अगर इस तरह से काम करना है तो इसका एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ये वो फलाना। नथिंग। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इसकी एक लाइन चर्चा नहीं हुई। 1 घंटे की बात में एसआईएस का सिस्टम, फिर वहीं से फोन्स लगने लगे सारे रीजन में। उस समय उतना वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रचलन नहीं था, सारे फोन्स पे सबको सूचना हुई कि जब दिल्ली में ये तय हुआ है, उसका ऑफिस ऑर्डर छपने लगा, कैसे काम करना है, सारे ऑफिसेज में लंगर लगाओ, या उसके रहने की व्यवस्था करो, या आने जाने की व्यवस्था करो, या क्या करो। एंड इन अ मैटर ऑफ नो टाइम एसआईएस वाज अप एंड रनिंग। एसआईएस प्रोसेगोर के लोग खटाखट अपने काम पे लगे, और एसआईएस प्रोसेगोर के लोग चूंकि काम पे लगे, तो बाकी जो कंपनीज इस क्षेत्र में हैं उनके लोगों को भी लगा कि नहीं हमको भी करना है। तो पूरा सेक्टर 24 घंटे 300 दिन, और कई मतलब बीबीसी और सीएनएन से लोग आए हमारे कैश सेंटर में रिकॉर्ड करने की लोग कैसे काम कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे मार्वलस बात बताऊं कि ऐसे पैसे आ रहे थे और जा रहे थे कि मतलब 10-20 नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए पुराना नोट उठा के लाके डंप किया हुआ था। उतनी ही मात्रा में नए नोट की करेंसी आके पड़ी हुई थी रिप्लेनिश करने के लिए। इतना बड़ा काम हुआ। 1 रुपए का आरोप, 1 रुपए का चोरी चकारी, किसी प्रकार का आरोप एसआईएस प्रोसेगोर के किसी कर्मचारी पे नहीं आया। सबने जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे ज्यादा जान लगा के काम किया, बिना अपना कोई ध्येय देखे हुए और बिना किसी गड़बड़ी के, 100% ईमानदारी से। ये सब जब इंसिडेंट में आप इन्वॉल्व होते हो तो लगता है कि यार सही में एक बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि एक बहुत उम्दा टीम के साथ और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का जीवन में अवसर मिला। So technology has been a very essential part of SIS journey always। देखिए है क्या कि ये बहुत ऑपरेशनली इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब आपके
हजारों लोकेशन में यूनिट चलते हैं, वहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, उनको मैनेज करना एक व्यवस्थित रूप से बिजनेस का स्केल बढ़ता जाता है। तो विदाउट टेक्नोलॉजी सिर्फ पेपर की कार्रवाई पे ये करना पॉसिबल नहीं है, और ये SIS ने हमेशा अपने इंडस्ट्री में इस विषय को लीड किया है। मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन और अरविंद प्रसाद जी, इन लोगों ने 1980s में जब देश में शुरुआती कंप्यूटर आ रहे थे बैंक्स वगैरह में, तो SIS भी एक कंप्यूटर 286 या 386 कंप्यूटर जो है वो SIS लेट 80s में लेके आ गया था, और उस पे जो है पेरोल और इन सब चीजों का काम 1980s में होता था। So SIS has been a thought leader and a technology leader always. It's been in our DNA. उसी तरह ERP भी जब आया तो हम लोगों ने बाकी सब की तुलना में पहले ERP लगाने में, ERP बनाने में इन्वेस्ट किया। मतलब कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो you will be shocked to know, जब इंटरनेट डायल अप सिस्टम में था, डायल अप इंटरनेट करते थे, उस जमाने में चेयरमैन साहब ने VSAT वर्चुअल सैटेलाइट सिस्टम से SIS के ब्रांचेस में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड हो, ये 1990 के अंत में SIS ये सब कर रहा था। तो SIS has always been technologically very ahead of the rest of the industry and it continues to be so। 2014-15 में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब IoT आना शुरू हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो हम लोगों ने किया कि हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू मेक आवर प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट। तो हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया अपने ऑपरेशन में। ऑपरेशन में होता क्या है कि हमारे कई मतलब सैकड़ों ब्रांचेस हैं और हजारों यूनिट्स हैं जिसमें लाखों गार्ड्स काम करते हैं। यूनिट और ब्रांच को कनेक्ट करता है एरिया ऑफिसर, जिसका काम होता है यूनिट जाना, घूमना, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रखना और डे चेक करना, नाइट चेक करना, क्लाइंट से मिलना, बिल जमा करना, कलेक्शन लाना, ये सारे इंपॉर्टेंट काम एरिया ऑफिसर के नाम के होते हैं। तो ये एरिया ऑफिसर्स में क्या हो रहा था कि कुछ लोग बहुत मेहनत से काम करते थे, कुछ लोग थोड़ा कम मेहनत से काम करते थे, और कंपनी को आकलन नहीं हो पाती थी इनके बारे में। तो हमने एक सिस्टम बनाया IOPS, इंटेलिजेंट ऑपरेशन। हमने पूरे सिस्टम में ये किया कि पेपरलेस ऑपरेशन, एक मोबाइल फोन और ऐप के माध्यम से आपको किस यूनिट में जाना है, आपने डे चेक किया तो मोबाइल ऐप से, नाइट चेक किया तो मोबाइल ऐप से, बिल जमा करी तो मोबाइल ऐप से, क्लाइंट से मिले तो मोबाइल ऐप से उसका ऑथेंटिकेशन, और ये सारी चीजों का रिपोर्ट ईमेल के द्वारा क्लाइंट को जाएगा। तो ये IOPS हमने बनाया। फिर एक ऐसा ही अनुभव आया, मैं एक बार उसी समय 15-16 या कब मुझे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने का अवसर मिला। पहले भी गया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, लेकिन इस बार गया पासपोर्ट बनवाने, तो एक न्यू एक्सपीरियंस। टाटा कंसल्टिंग आ गया था पासपोर्ट सेवा केंद्र चलाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ जाओ, फोटो खिंचाओ, वहाँ जाओ, एक फॉर्म भरो, यहाँ जाओ, बायोमेट्रिक करो, ऐसे करके स्टेप करो और खट आप बाहर, आपका काम हो गया। तो आई केम बैक एंड आई कॉल्ड ऑल माई IT गाइज एंड आई सेड कि यार मैं ऐसा ऐसा देख के आया हूँ एंड इट्स अनबिलीवेबल। तो मेरे जो IT वाले लोग थे, मैंने उनको बोला कि आप भी देख के आओ। बोले सर हम कैसे देख के आएंगे? चलो तुम्हारा पासपोर्ट बनवाता हूँ। तो उनका पासपोर्ट, उनकी जरूरत नहीं भी थी, फिर पासपोर्ट उनका अप्लाई करवाया। फिर वो उन्होंने जाके देखा यार ये कैसे चलता है। फिर वापस हाँ सर है तो गजब। मैंने बोला यार ऐसा करते हैं, हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है, हमारे सैकड़ों ब्रांच है, ट्रेनिंग सेंटर है, कौन बंदा कहाँ भर्ती हो रहा है उसकी कोई स्टैंडर्ड्स हम ट्रैक नहीं कर पाते, पेपर पे होता है, इससे बहुत गड़बड़ी होती है। तो अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसा एक कियोस्क बनाए जिसमें उस बंदे की हाइट की नापी, उसके चेस्ट की नापी, उसके वेट की नापी, उसके बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके आधार कार्ड का स्कैन, उसके एजुकेशन का डिटेल का स्कैन, उसका अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उसका पुराना PF नंबर, ESI नंबर, ये सब हम रिकॉर्ड लेके उसको एक स्कोरिंग सिस्टम बना दें कि भाई अगर आपको ऐसे ऐसे आंकड़े हैं तो आप पास हो, गार्ड बन जाओगे, और अगर आपके ये नहीं है, मानो आप मैट्रिक पास नहीं हो या छोटे कद के हो बहुत, या और किसी तरह से आप अनसुटेबल हो, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस आइडिया पे वी क्रिएटेड ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट कियोस्क, आर्क। जैसे नोवाज आर्क था वैसे हमने आर्क बनाया। आज SIS पूरे देश में हर एक बंदा जो रिक्रूट होता है वो आर्क के थ्रू, ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आता है। उसी तरह ट्रेनिंग की बात हुई कि ट्रेनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमने ट्रेनिंग सेंटर तो बना लिए, SIS 15-20 ट्रेनिंग सेंटर उस समय तक बना चुका था, पर प्रॉब्लम ये होती थी कि बंदा तो ट्रेनिंग सेंटर में एक बार जाएगा, भर्ती होने के समय वो ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा, उसके साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ही इज नॉट गोइंग टू बी गोइंग अगेन, और उनको वापस ट्रेनिंग सेंटर लाना, ले जाना, उसकी तनख्वाह कौन देगा, उसका खर्च कौन देगा, वो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि यार ये ट्रेनिंग जो है इसको ट्रेनिंग सेंटर से बाहर ले जाना। तो उससे पैदा हुआ ये आइडिया M ट्रेनर का, मोबाइल
ट्रेनिंग। हमने इसके 3 प्लेटफॉर्म बनाए। मोबाइल ट्रेनिंग वैन, जब गाड़ी जाएगी यूनिट्स में और ट्रेनिंग देगी, उस पे सारी सुविधा है, LED स्क्रीन, चार्ट, डेमो किट, बैठने की व्यवस्था, ट्रेनर, सब कुछ। फिर हमने बनाया एम ट्रेनर का टैब कि हमारा ट्रेनर जो जा रहा है उसको भी एक टैब देंगे ताकि वो दिखा के सब कुछ समझा सके। और तीसरा हमने फिर किया एम ट्रेनर ऑन मोबाइल, कि गार्ड्स के मोबाइल पे हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ट्रेनिंग दें। और आज आप ये एम ट्रेनर का कॉन्सेप्ट देखो तो पूरे देश में SIS चला रहा है। SIS इज द फर्स्ट। और सबसे विशेष बात इसकी कि हमारे कई कंपेटिटर्स ने इसको कॉपी किया है। इतना कॉपी किया है कि ट्रेनिंग वैन का कलर भी चेंज करना भूल गए। बट आई बिलीव दैट इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। अगर कोई आपको इमिटेट कर रहा है तो वो एक तरह से आपको धन्यवाद देने का सबसे बड़ा तरीका है कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो कि हमको उसको कॉपी करना पड़ रहा है। तो ये सारा हो, या अभी हाल फिलहाल में हमने माई SIS लागू किया है, पहला फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। जब हम इसको लेके आए तो लोगों ने कहा कि सर क्या जरूरत है इसकी, अटेंडेंस तो बन ही रहा है मॉर्न इनपुट पे। लेकिन हमारे ध्यान में ये बात थी कि गार्ड को बहुत असुविधा होती है, उसका अटेंडेंस हम भरते हैं रजिस्टर में, फिर वो जाता है मॉर्न इनपुट में, फिर मॉर्न इनपुट जाता है एंट्री करता है कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें 19-20 होती है, गार्ड का समस्या होती है। तो क्यों ना गार्ड का अटेंडेंस उसके हाथ में रहे। हमने कितनी ड्यूटी की वो गार्ड को दिखता रहे, कितने बजे ड्यूटी पे आए, कितने बजे ड्यूटी से गए, वो दिखता रहे। अगर हमको लीव चाहिए तो उस पर दिखता रहे। हमारी ट्रेनिंग का या हमारे पे स्लिप तक, या हमको कोई लोन वगैरह चाहिए वहां तक, सारी सुविधा उसके हाथ में, उसके फोन पे रहे। लोगों ने कहा सर इसमें तो करोड़ों रुपए लगेंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी SIS जिस पे लग जाती है, SIS का एक बहुत जुझारू नेचर है। पीछे पड़ गए तो पड़ गए। फिर उसको हमने पूरा सॉफ्टवेयर सेल्फ डेवलप किया। हमारी IT टीम जो यहाँ पे है उसने ही सारा कुछ बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। और फिर हमारी टीम ने जुट के इसको पूरे देश के हर एक साइट पे लागू किया। एंड टुडे SIS दी ओनली कंपनी जिसके अंदर पूरा अटेंडेंस और ये पूरा सिस्टम डिजिटाइज और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। सो टेक्नोलॉजी आई बिलीव इज वेरी सेंट्रल टू स्केलेबिलिटी। अगर आपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपने टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट डू दैट, यू कांट बिल्ड अ बिजनेस जो कि स्केल हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में स्पेशली इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो SIS की जर्नी, ये 50 साल की जर्नी में मेरे भी मतलब 22 साल से ऊपर SIS में अब हो गए। इन द लास्ट 22 ऑड ईयर्स मैंने 2-3 ऐसे पीरियड देखे हैं जब लगा हो कि अब SIS थोड़ा खतरे में आ गया, या अब आगे क्या होगा, या दैट फियर या चिंता। तो इफ आई रिकलेक्ट, एक पीरियड तो ऐसा आया था जब मैं ज्वाइन किया था 2002-3, पहले 12 महीने 2 साल, जब SIS में एकदम कैश क्रंच था, तनख्वाह हम नहीं दे पा रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई थी। तो उस समय एक डर भी लगता था कि क्या होगा कंपनी का, हाउ विल वी गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। इतने वेंडर्स के पेमेंट देने हैं, इतने इसके पेमेंट देने हैं। एक पीरियड जैसे मैंने आपको बताया आया सिक्योरिटास की डील के समय, जब वी केम दिस क्लोज टू टेकिंग अ डिसीजन कि हम सिक्योरिटास के साथ डील कर लेंगे और शायद फिर SIS will become part of Securitas. So that was a period जब ऐसा एक आया था। एक पीरियड आया जब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हमने अक्वायर की, बहुत डेट था। मतलब एक समय में SIS की बैलेंस शीट 7 टाइम्स गियर्ड थी, बहुत अधिक डेट था और बहुत ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का समय था। तो उस समय लगता था कि यार कहीं गलती तो नहीं कर ली, अब क्या होगा। ऐसा ही एक समय आया कोविड के समय, और व्हेन आई रिमेंबर दैट पीरियड, आई हैव नेवर फेल्ट सो हेल्पलेस इन माय लाइफ और सो अनश्योर अबाउट हाउ थिंग्स विल पैन आउट। आई रिमेंबर फरवरी का पीरियड था 2020, GMC की मीटिंग हुई देहरादून में, और हम लोगों ने विजन 25 लॉक इन किया बड़े उत्साह के साथ कि हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बना रहे हैं और हम इसको लॉन्च करेंगे आने वाले एनुअल कॉन्फ्रेंस में। और ऑस्ट्रेलिया जाना था मुझे, उदय सिंह साहब को और बाकी कुछ लोगों को इन फरवरी ओनली। और पहली बार उस समय हमको ट्रैवल एजेंट्स ने बताना शुरू किया, और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम और सिंगापुर की टीम ने बताना शुरू किया कि कोविड है और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस समय थिंकिंग आ रही थी यार कितना बुरा हो सकता है, मतलब कोविड मतलब क्या, सार्स हुआ था, हमारे लाइफ में कोई फर्क नहीं आया, तो मतलब कोविड कोई बात नहीं। Towards the end of February, early March,
जब पहली बार लगा कि देश दुनिया में लॉकडाउन होने लगे, कि लॉकडाउन लगेगा इंडिया में भी या नहीं लगेगा इंडिया में. सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्योंकि देयर वर 3 challenges. पहला चैलेंज ये था कि इतने सारे लोग, हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोविड का इम्प्लीकेशन पहली बार समझ में आने लगा अर्ली मार्च में 2020. और वी वर क्विक टू रियलाइज, क्योंकि we were watching what's happening in Europe and other parts. इंडिया लॉकडाउन पे नहीं गया था, बट वी वर क्विक टू रियलाइज कि यार हमारे लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है. और 3 challenges ध्यान में आ रहे थे. नंबर 1 चैलेंज कि हमारे लोग, हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि वी कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम. हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे जैनिटर्स, हमारे कैश वैन क्रू, इनका काम ही फील्ड में है. इनको हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते. तो सबसे पहला ये रिस्क था कि व्हाट हैपेंस टू दीज पीपल, और इनको अगर कुछ हो गया कोरोना के कारण तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और हम कैसे उसको मैनेज करेंगे. दिस वरीड ऑल ऑफ अस अ लॉट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2.5 लाख से ऊपर जाने. सेकेंड, I think the natural worry was that कोरोना में हमारे कस्टमर्स अफेक्ट होंगे. अगर मानिए कि कस्टमर्स अफेक्ट हुए, उनकी प्रोडक्शन बंद हुई, फैक्ट्री बंद हुआ, मॉल बंद हुआ, तो वो फिर पेमेंट कैसे देंगे. अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो हम कैसे अपने गार्ड्स की तनख्वाह और बाकी सब चीज़ मैनेज करेंगे. तो सेकंड चीज़ जो दिमाग को सता रही थी वो है फुल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड. तीसरा, वी डिडंट नो कि सरकार किस तरह से बिहेव करेगी, सरकार के क्या रूल रेगुलेशन, क्योंकि हर एक देश में सरकार अलग अलग तरीके से कोविड को डील कर रही थी. तो अर्ली मार्च में ये सारी इश्यूज प्रॉब्लम का कारण बन रहे थे. आई रिमेंबर दैट SIS ने अर्ली मार्च या 10-1 मार्च के आसपास ही एक कोविड स्ट्रेटेजी एंड रिस्पॉन्स ग्रुप बना लिया था. सो वी एंटिसिपेटेड कि यार ये प्रॉब्लम होने वाली है और चिंता बहुत थी. हमने एक ग्रुप बनाया, सोचना चालू कर दिया. पर तब भी मुझे याद है कि हमारे कई टीम मेंबर्स को लग रहा था कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. कि यार ये सब मतलब ठीक है, मतलब अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, पर क्या कि उसी समय शायद पहला कोविड केस इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था या नहीं हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मार्च. एंड वी वर थिंकिंग कि हम कैसे करेंगे. सम पीपल टेकिंग इट सीरियसली, सम लेस सीरियसली, बट आई रिमेंबर बीइंग एक्सट्रीमली वरीड अबाउट दीज थिंग्स. एंड मैं लोगों को थोड़ा सा जिद भी कर रहा था कि यार पे अटेंशन, दिस इज वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, ये वो. तो लोगों को लग रहा था कि यार ये पैनिक कर गया है ज़्यादा. एंड फिर 23 मार्च को कोविड का लॉकडाउन हुआ. एंड सडनली आई वॉज इन शॉक, बिकॉज कोविड का लॉकडाउन हुआ, सडनली हुआ, और मुझे क्लियर नहीं था कि हाउ वी गोइंग टू मैनेज इट. किसी को क्लियर नहीं था. आई रिमेंबर दैट नाइट इट स्ट्रक मी दैट अगर लॉकडाउन लगा और हमारे सारे साइट्स बंद हो गए तो ये लाखों लोग जाएंगे कहाँ. और ये सिर्फ SIS की बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में 50 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं. क्लीनिंग, सिक्योरिटी, कैश वैन, ये जाएंगे कहाँ. एंड आई रिमेंबर दैट फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, फॉर सम ऑड रीजन आई जस्ट गॉट रेडी एंड केम डाउन फ्रॉम माई अपार्टमेंट एंड आई टोल्ड माई ड्राइवर कि चल गाड़ी निकाल, लेट्स गो. मुझे पता नहीं था कि क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू सी कि हो क्या रहा है. एंड ऑब्वियसली पुलिस वाज ऑन हाई एक्शन. खैर हमने SIS का लोगो वो चिपका के गाड़ी पे एसेंशियल सर्विस का स्टिकर वगैरह लगा के कुछ ऐसे हम लोग निकले. और मैं ग्रेटर नोएडा के ब्रांच गया, फिर मैं SIS के नोएडा के ब्रांच गया, फिर दिल्ली में रास्ते में साउथ एक्सटेंशन का ब्रांच पड़ता है वहाँ गया, द्वारका का ब्रांच गया, गुड़गांव के ब्रांच तक में जितना गाड़ी जा सकती थी मैं गया. एंड आई जस्ट स्पोक टू पीपल. हमारे ब्रांच में जो भी लोग थे, आई जस्ट स्पोक टू देम कि यार आई वांटेड टू गेट अ सेंस ऑल्सो. मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की. एक तो कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं और वो लॉकडाउन के बावजूद ऑफिस आके बैठे हैं. सारे नहीं थे, कुछ मिसिंग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबल सीनियर लोग सब थे. बट द प्रॉब्लम वॉज कि अगर सरकार प्राइवेट सिक्योरिटी को नहीं रिकग्नाइज करेगी, फैसिलिटी मैनेजमेंट को नहीं रिकग्नाइज करेगी एसेंशियल सर्विस के लिए, तो हमारे ब्रांचेस भी बंद करने पड़ेंगे. सबके हो रहे हैं तो हमारे भी होंगे. And then I remember making चक्कर्स for the next few days. There were only 2 places I was going to. एक मैं बैंक्स लोन क्रैश क्रेडिट के लिए कि अगर पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाह बांटने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा मैं गृह मंत्रालय के चक्कर लगा रहा था. जितने लोगों को जानते हैं उनको फ़ोन करना, ये करना, वो करना. एंड अ मैटर ऑफ 4-5 दिन वी गॉट नोटिफिकेशन दैट प्राइवेट सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, दे हैव ऑल्सो बीन एडेड टू द एसेंशियल सर्विसेज लिस्ट. यानी हमको पूरे देश में अब काम करने के लिए अनुमति मिल गई. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट बिग विन. अगर वो नहीं होता तो शायद हमारी इंडस्ट्री भी बंद होती बाकियों की तरह, और उसके बाद अगर इंडस्ट्री नहीं बचती लॉकडाउन के दौरान तो SIS के बचने का क्या सवाल था. सो आई थिंक गॉड वाज वेरी काइंड एंड
जो ट्राई किया वो फिर एसेंशियल सर्विस में आ गया। फिर दूसरा चैलेंज मेरे दिमाग में आया कि यार अब गार्ड्स को अगर जाके ड्यूटी करनी है और हम घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, तो ये तो ना फेयर है, ना एसआईएस का कल्चर है, और ना इस तरह से हम बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने अपने कोविड रिस्पॉन्स ग्रुप के साथ बात की और मैंने कहा कि एसआईएस का हर एक ब्रांच, हर एक ग्रुप कंपनी का बंद नहीं होगा, सारे ब्रांचेज ओपन होंगे। क्योंकि अगर गार्ड और जैनिटर काम कर रहे हैं, कैश वैन में क्रू घूम रहा है, तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे। दैट इज़ इम्पॉसिबल है फॉर अ बिजनेस दैट डील्स विद मैन पावर। अगर आप उनको ये समझाओगे या ऐसे डील करोगे कि हमारी जान की कीमत बहुत है, हमारे परिवार के जान की कीमत बहुत है, पर यू आर डिस्पेंसेबल, आपका कोई ये नहीं है, तो वो तरीका भी गलत है और ऐसे चलता भी नहीं है। तो मैंने सबको बोला। उस समय तक कई सारे हमारे कंपेटिटर्स ने अपने ऑर्डर्स निकाल दिए थे कि ब्रांचेस विल रिमेन क्लोज, दिस दैट। इट टुक अ कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन कॉल। कोई ऑफिस नहीं बंद होगा, इंक्लूडिंग द हेड ऑफिस। मैं खुद ऑफिस जाऊंगा एंड आई डिडंट टेल एनीवन कि आपको आना मैंडेटरी है, ये वो, मुझे जरूरत ही नहीं लगी। एसआईएस में कल्चर इतना स्ट्रांग है और सेंस ऑफ ओनरशिप इतनी बड़ी है कि हो सकता है कि जो संकोच हुआ होगा, पर सारे आना शुरू हुए। वी इम्प्लीमेंटेड अ वाइड स्प्रेड प्रोटोकॉल। सबको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने घर के कोने वाला कमरा ले लो, अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाओ। आपके कैसे मास्क, चश्मा, ग्लव्स कैसे डिस्पोज करना, कैसे हैंडल करना, परिवार को सेफ रखना कैसे जरूरी है, फला फला बहुत सारे ऑर्डर्स और गाइडलाइंस हमारे एचआर की टीम ने दिन रात बैठ के बनाए। उनको लोगों को समझाना पर्सनल सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे अगर किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो एंड ऑफ इट। एंड देन आई रिमेंबर दैट आफ्टर दैट वी पुट आउट दिस strategy team, that all of us together through consultations put out this plan कि हम एक तरफ बिजनेस का भी संरक्षण करेंगे, लेकिन पहले अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। पीपल फर्स्ट। या आई मीन स्टोरी इज लॉन्ग, आई कैन घंटों इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन एसआईएस वाज द लीस्ट इफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड। हमारे रेवेन्यू और हमारे बिजनेस पे दूसरे कंपेटिटर्स की तुलना में सबसे कम इम्पैक्ट आया। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लोग ब्रांच के एरिया ऑफिसर से लेके, ड्राइवर से लेके, सीईओ तक, एसबीयू हेड्स, प्रेसिडेंट, फाइनेंस के लोगों तक, सबने पूरा जिम्मा लिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एसआईएस का बिजनेस वाज लीस्ट इफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड। सेकंड, हमने इतने प्रोटोकॉल्स भी बनाए कोविड से बचने के कि भारत के कोविड इंसिडेंट्स के अनुपात में एसआईएस में कोविड इन्फेक्शन की मात्रा 1/4 थी। फिर भी किसी को तो कोविड होता ही है। इतने लाख लोग काम कर रहे हैं, कोविड से कैसे बचेंगे? तो फिर आई रिमेंबर सेकेंड फेज जब लॉकडाउन एक्सटेंड होने लगा, तो हम लोगों ने एक लाया HHVD, हमारे हीरोज करके एक स्कीम लाई, जिसमें कि व्हाट वी सेड दैट एक तो लोग जो काम कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करना, दूसरा अगर किसी को कोविड होता है तो उसको इंस्टेंटली विद इन 100 आवर्स टेस्टिंग के अंदर उसको 14-15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो 15 दिन की तनख्वाह एसआईएस उसको एक टोकन 10,000 रुपए इंस्टेंटली रेमिट करेगी कि आप 15 दिन अपना स्वास्थ्य देखो, हमको अपडेट करते रहो, कोई इमरजेंसी होगी तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या हॉस्पिटलाइजेशन वो सब में मदद करेंगे, लेकिन आप 15 दिन अपनी तनख्वाह की चिंता मत, घर बैठो, खाओ पियो, दवा लो और बच के रहो। तो उसका भी बहुत एक अच्छा प्रभाव हुआ। एंड देन आई रिमेंबर दैट साल भर इस तरह से खींच-खाच के बीता। उसके बाद वैक्सीन के बारे में पहली जानकारी मिलनी शुरू हुई कि सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, और हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव को एक मिशन बनाया। यू विल नॉट बिलीव कि हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला था 2021 के अप्रैल में वर्चुअली, हमने उसको भी कैंसिल किया और हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव देश भर में लॉन्च की। और हमारे एचआर टीम ने उसमें एक बहुत उम्दा काम किया, पूरा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो फील्ड के टीम्स हैं, जो हमारे असली लीडर्स हैं ब्रांच में और रीजन में, उन लोगों ने वैक्सीन लगवाने का काम टेकअप किया। आई रिमेंबर वैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी भी थी कि लोग घबरा भी रहे थे कि वैक्सीन टेस्ट नहीं हुई पूरी और क्या खतरा ये वो। तो आई स्टिल रिमेंबर कि इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था और चेयरमैन ने मुझे सुना, शायद ओवरहियर किया। उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो, सबसे पहले मुझे और अपनी माता जी को वैक्सीन लगवा, तुम खड़े होकर चल के लगवा दो वैक्सीन, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा एसआईएस में कि इसमें खतरा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्स में सिक्योरिटी एसआईएस की है, तो चेयरमैन मैडम सबको वैक्सीन लगा, क्योंकि वो एल्डर्स थे तो उनको पहले उपलब्ध हो रहा था और एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में हमको उपलब्ध हो रहा था। तो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की और हमने टारगेट रखा कि दिन के 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाएं पूरे देश में। किसी को पता नहीं था कि कहाँ मिलेगा वैक्सीन और कैसे होगा, बट आई रिमेंबर इन रिकॉर्ड टाइम हम लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज पूरे एसआईएस के हर एक वर्कर को लगाया, फिर सेकेंड डोज सबको कंप्लीट किया और एसआईएस के पूरे इकोसिस्टम को वैक्सीनेट किया। सो कोविड भी एक ऐसा पीरियड है, अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो पहला तो कोविड इसलिए याद रहेगा कि कोविड में ऐसा लगा
कि SIS का अब कैसे मैनेज करेंगे, अब क्या होगा। तो वो एक उस कारण से याद है। दूसरा इसलिए याद है क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से फाइट बैक किया, और किसी एक बंदे ने नहीं, किसी एक आदमी ने नहीं, ये तभी फाइट बैक हो पाया क्योंकि SIS केम टुगेदर एज वन यूनिट एज इट इज़। जो हमारा कल्चर, हमारी DNA है कि अभी कोई बात नहीं, कोविड है, हम साथ मिलेंगे एज अ फैमिली और साथ लड़ेंगे और साथ पार लगाएंगे। तो द फैमिली फॉट टुगेदर। जिसका काम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन था वो वीडियो बना रहा था, जिसका काम HR का था वो वैक्सीन लगवा रहा था, जो फाइनेंस का था वो फाइनेंस वाला तनख्वाह की व्यवस्था कर रहा था, जो सेल्स वाला था वो भी ऑनलाइन पे क्या सेल्स कर सकते हैं हम, कस्टमर को क्या उपलब्ध करा सकते हैं, जो ऑपरेशन के लोग थे वो भी कस्टमर की क्या मदद हो सकती है, कैसे उनका लुक आउट। हर एक आदमी अपना पूरा काम पूरी जिम्मेदारी से। सो दैट वाज SIS के कल्चर का एक बहुत खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड वी ओनली केम आउट स्ट्रॉन्गर। एंड नॉट टू मेंशन, ये तो मैंने इंडिया की कहानी बताई, मैं तो यहाँ पे था और हम ये सब कर रहे थे, पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है वहाँ तो हम 2-2 साल 3-3 साल जा भी नहीं पाए। वी कुड नॉट विजिट, वी कुड नॉट गो। पर वहाँ के लोगों ने कितनी जिम्मेदारी से पूरा इसको मैनेज किया, कैसे टैकल किया, आई थिंक इट्स रिमार्केबल। आई थिंक कोविड विल गो डाउन इन SIS हिस्ट्री एज इन ग्लोबल हिस्ट्री and in our personal memories as a very difficult time, but also as a time that gave us a lot of strength as a family unit, as a business unit, as individuals. There was no separation between business and family. It was all one big family. And I think that culture of SIS, वो SIS का DNA शायद आज भी कुछ हद तक जिंदा है। उतना क्लोज नहीं है, जब एक छोटा परिवार होता है तो बहुत क्लोज होते हैं, बट आज इतने सालों के बाद भी SIS, अब 50 years since the idea was generated and almost 40 years now since the company was incorporated in 1985 as a private limited company. But in this long years, I think one of the greatest things that the chairman has instilled in the organization is the family culture. I think that differentiates SIS from the rest. I think it's the same for SIS as for any security company. I mean, the world is developing, and I would say India is developing a lot faster than most of the rest of the world.